Hi, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 3 of Tuti Speaks. After a huge there was a lot that happened in season 2, and it went really great. So after that, I'm again back on season 3, and this is again a based podcast. So today I have Samviti with me. थोड़ा सा शुरू करते हैं how I met Samviti. I think we met 2-3 years back. I started seeing her Insta page and I really liked it. So the page was named as Your College Journal. And when I went to it was like very aesthetically pleasing and we started following each other. वहां से I started knowing you better, and then suddenly I think we collaborated. When we were talking, I got to know we collaborated over Insta Live as well, where we were doing that skincare session and everything. And there also, again, I kept on following you. You created your new account. So suddenly one day I saw your post where you got your head shaven, and there was a lot of changes that were coming in that new Insta account which you created, and you were genuinely very inspiring. And log bolte hain like hair is like crown, because hair is on your like crown chakra ke paas, so there is a lot of ego that is in your hair, ऐसा spiritually बोलते हैं. And when you get your head shaved, I think a lot of changes happen in your personality. So I was curious, okay, let me talk to her about it, and we can, I mean, discuss and ask on her perspective in detail. So बहुत ज़्यादा लंबा intro हो गया. Samviti, welcome to the podcast. Welcome to Stuti Speaks. I hand it over to you. You can give a bit of your intro and then we can take it from there. Hi, thank you so much for having me here. And it's really so awesome to be here. And finally, like I'm here on a podcast. This is actually my first podcast, so I'm really excited. अच्छा introduction आपने already दे दिया है मेरे बारे में, and I don't think और कोई चीज add करने की जरूरत है. But yes, we met on Instagram. I'm added as a content creator. And yes, in 2020 my head, and it's already been an year, like 1 year since I shaved my head. तो बहुत ही amazing experience रहा है. अब आगे podcast में बताएंगे कि क्या क्या सीखने को मिला उसमें. Thank you so much, Samviti. So first of all, I wish you many more podcasts, like apna khud ka or whatever you want to achieve for in the terms of podcasting. So let me start from here. Like came to your what came to your mind when you did that first? That's the first part of my question. The second part is how was the people reaction around you, especially the closer one, friends bhi nahi kahungi, parents maybe, or someone who's really close to you. So yeah, we can start it from there. So like contrary to popular belief, काफी लोगों को ये लगता है कि एक दिन मैंने सडनली डिसाइड करा कि आज मुझे अपने सारे बाल हटा देने हैं एंड मैं बिल्कुल ही लाइक इनसेन हो चुकी हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. मैंने एक्चुअली काफी यूट्यूब वीडियोस में देख रही थी एंड सडनली मैं एकदम से मेरे पेज के ऊपर एक वीडियो आई जो था कि विमेन शेविंग देयर हेड, एंड मैंने जब वो देखा तो पहले ऑब्वियसली थोड़ा लाइक मुझे लग रहा था एंड आई वाज लाइक कि यार ये चीज है बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इट इज समथिंग दैट इज रियली करेजियस एंड मेरे को भी एक बार ये ट्राई करना चाहिए. एंड मतलब इट वाज लाइक कि आपने एक पूरी स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है, वो उससे एक हट के चीज कर. तो मैंने इस पे 1-2 महीने काफी सोचा क्योंकि बिकॉज़ हेयर इज अ वेरी बिग थिंग एंड लोग इससे इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं, अपने बालों से ही नहीं दूसरों के बालों से भी. I want to add one thing that, like, for my audience, like people who are listening, राइट. she had literally very, very beautiful hair. I mean, I was following you. You had those long hairs which were really very beautiful. Plus, you were tall. So, wo aur bhi zyada, I think that looks like added a lot to your beauty as well. So, it must have been obviously a tough decision. Yeah, but sorry to cut you off. You can continue. Yeah. सो लाइक 2021 में मैंने अपने हेयर आधे तो चॉप कर ही दिए थे, तो इट वर लाइक टिल माय शोल्डर्स. उस टाइम में मुझे ये था कि बहुत टाइम से लंबे बाल हो गए हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो अब कुछ नया करना चाहिए. तो उस टाइम पे मैंने उनको कलर भी करा, डिफरेंट स्टाइल ट्राई करा एंड 1 साल तक मैंने वो बाल रखे. बट जब मैंने ऐसा यूट्यूब पे देखा तो मेरे को लगा ये चीज मेरे को ट्राई तो करनी चाहिए एक बार, एंड अगर लेटर एज में करूंगी क्या पता बाल दोबारा आए ना आए. अभी तो मैं फिर भी यंग हूँ, 20s में आ भी जाते हैं लोगों के वापस, तो वो चीज थी. प्लस आई रियलाइज कि यार नहीं ये तो बहुत टेम्परेरी चीज है, जब क्योंकि मैंने गीता और महाभारत काफी पढ़ी है तो उसमें ये चीज बोला जाता है कि ये सारी चीजें बहुत टेम्परेरी हैं. एंड मैंने यही सोचा कि बाल है वापस तो आ ही जाएंगे, उसमें काफी लोगों के पास बढ़ जाते हैं. तो उस दिन फिर मैंने सोचा कि हाँ ये एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा. एंड मेरे पेरेंट्स को मैंने पहले ही थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि देखो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आया और मैं ऐसा कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ट्राई करने वाली चीज है. एंड ऑफ कोर्स मेरी मॉम बहुत शॉक हो गई थी एंड उनको बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी, मतलब वो चाहती नहीं थी कि मैं ऐसा करूं, बिकॉज उनके लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनली अटैच्ड है वो मेरे बालों से. ऑफ कोर्स आपकी मम्मी ने आपको बड़ा करा है, तेल वेल लगा के चोटियां बनाई है बचपन से, तो Right. इसलिए
उनके लिए तो वो बहुत ही इन्वेस्टमेंट की तरह है कि हमने इतना पाला पोसा, बाल इतने लंबे हुए, फिर काटने क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने बेसिकली ट्रिमर छुपा दिया, जो मेरे भाई का ट्रिमर दिया, उन्होंने वो छुपा ही दिया। तो मैंने कैसे तैसे करके सिजर से अपने बाल काटे, बिल्कुल शॉर्ट कर दिए थे, एंड अल्टीमेटली उन्होंने फिर मेरे को ट्रिमर अगले दिन दे ही दिया, बट बहुत अपसेट थी वो, बहुत ही गुस्सा फैमिली में किया। एंड फिर मेरे भाई ने काफी मतलब मुझे इस चीज पे सपोर्ट करा, तो उसी ने फिर सारा खुद ही मतलब जो बचा कुचा लास्ट का शेप था वो उसने करा। मैं इनफैक्ट सैलून भी नहीं गई, तो मतलब पहले सर की शेप कितनी बढ़िया है, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा मेरा सर होगा अंदर से, कैसा निकलेगा, बट बहुत ही मतलब अमेजिंग जो फर्स्ट लुक होता है जब आप अपने आप को बिना बालों के देख लगता है उसमें। क्योंकि मेरे हिसाब से बालों का ना हमने एक बहुत ज्यादा सेफ ब्लैंकेट बना लिया, स्पेशली हम अपने आप को उसके अंदर छुपा लेते हैं, तो इट्स ऑल्सो कि हमारा एक सेफ्टी वाला वो चीज चली गई है। और अब आपको अपने आप को शीशे में देखना है बिना बालों के, तो ऑब्वियसली आपको अपने फेस पे और ज्यादा चीजें देखेंगी जो आपको और ज्यादा इनसिक्योर भी हो सकता है। तो मेरे लिए वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग रही थी जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा था, तो आई वाज लाइक कि ये बहुत सही चीज है। आई थिंक ये ना मतलब बहुत ही फर्स्ट ऑफ ऑल इंडीड अ वेरी बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन, बहुत ही ज्यादा टू अ लिमिट, लाइक ऑब्वियसली कोई इट्स नॉट दैट इजी, तो कोई इजीली नहीं ले सकता। बट वही व्हेन लाइक यू वर टेलिंग कि मैं बहुत टाइम से वीडियो देख रही थी, एक दिन का डिसीजन नहीं था। सो माय पॉइंट अगेन वाज कि व्हाट वाज योर माइंडसेट, व्हाई यू वांटेड टू डू इट? आपका एक पर्टिकुलर कुछ मोटिव था उसके पीछे, या फिर आई मीन यू जस्ट वांट टू ट्राई इट? एक होता है ना कि ट्राई करना है बस, बट कुछ तो कुछ लॉजिकल रीजनिंग थी इन योर माइंड फॉर योर सेल्फ, जस्ट आस्किंग फॉर द लाइक क्यूरियोसिटी पर्पस? हाँ, मतलब पहले तो मेरा यही था कि ट्राई तो करना है, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसे हो गया था कि एक बार एक ही लाइफ है, तो उसमें चीजें जितनी हो सके वो ट्राई करनी चाहिए। एंड मेरे लाइफ किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, वो चीज गलत नहीं है, उसको ट्राई हेल्थ का नुकसान नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तो ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि मेरे को स्टार्टिंग से अगर लोग ऐसे कहते थे कि अगर आप एक लड़की हो तो आपको ये पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है, आपको ऐसे 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 बिहेव करना है, तो वो चीज हमेशा मुझे बहुत टिक करती थी कि नहीं, ऐसा हम क्यों मतलब एक वो बना रहे हैं। अब किसी की पर्सनैलिटी अंदर से कैसी है वो ठीक है, वो उसका अपना खुद का है, बट आप एक स्टीरियोटाइप में नहीं बांध सकते, हर बंदा अलग है, एंड सबका फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है। तो अटैचमेंट है क्यों मुझे उस चीज से जो कभी भी जा सकती है, जो टेम्परेरी है। एंड इतने लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं जिनके बाल बहुत सारे डिजीजेस की वजह से गए हैं, वैसे भी गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है लोगों को, तो तब मैंने ये चीज सोची कि ये टेम्परेरी है। एंड मेरे ऊपर महाभारत का भी बहुत इन्फ्लुएंस था, तो आई वाज लाइक ये सब मोह माया है और मैं इसमें क्यों पढ़ रही हूँ। थोड़ा हमें हायर लेवल पे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि बिना वालों। एंड प्लस मैं सेल्फ लव के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, प्लस उसके ऊपर मैं कंटेंट भी उसी पे बनाती हूँ, तो मेरे लिए एक वो स्टेप था कि मुझे ऑब्वियसली अपने आप को उस फॉर्म में भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो असली सेल्फ लव तो वहां पे भी दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ सेम पर्सन नहीं हूँ, एंड मेरे बाल मुझे डिफाइन नहीं करते। तो मेन चीज वो थी कि अपने आप को एक्सेप्ट करना उस पूरे फॉर्म में, एंड उस चीज के साथ इनफैक्ट लिव, यू हैव टू लिव विद इट। तो बट हाँ, यही था मेन रीजन। तो But yeah, amazing. Like now I got it. Like now I got your idea and intention. तो now let's move थोड़ा सा आगे जाते हैं. As I said, मैंने बहुत जगह पढ़ा है और people have said this thing as well. If you have seen a movie, there is a movie named as Goodbye. उसमें अभी lately that has been released. Amitabh Bachchan and Radhika. I'm not sure. आई जस्ट सॉ इट लाइक, तो उसमें वो द पर्सन, उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, बेटे की मॉम की डेथ हो जाती है, एंड दैट्स हाउ उसको अपनी हेड को शेव कराना पड़ता है, बिकॉज दैट्स द रिचुअल इन इंडिया जनरली, कि आप राइट। यू डू दैट व्हेन योर पेरेंट ईदर ऑफ योर पेरेंट्स डाई, देन बेटा नीड्स टू डू इट। तो वो करवाता नहीं है अब बहुत टाइम तक, बिकॉज ही वॉज इनटू, वो बाहर ही रहता है एंड ही वॉज इनटू बिजनेस मीटिंग्स एंड ऑल, तो उसका कल्चर पे वो सूट नहीं कर रहा होता, एंड देन ही फाइनली डिसाइड्स टू डू दैट। ठीक है, सो माय मेरे को वो वहां से भी थोड़ा सा स्टक करा कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, लाइक आई थिंक द आइडिया बिहाइंड स्पिरिचुअली इज टू लेट गो द थिंग्स यू आर टू मच अटैच्ड टू। लाइक हम होते हैं ना, बहुत चीजों को बोलते हैं कि वी ओ दिस, वी ओ दैट, और हम राइट। उसको उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते। सो did you saw some changes in your mindset after that, like visible changes? I know obviously इनिशियली कुछ टाइम तो टफ भी रहा होगा ना अपने आप को ऐसे देखना, सेल्फ लव बोलना बहुत आसान है, बट ठीक है यार, मेरे कुछ फीचर्स होंगे जो मुझे नहीं अच्छे लगते होंगे, तो इट टुक मी टाइम टू एक्सेप्ट दोस कि हाँ, दिस इज माय बॉडी एंड आई लाइक इट वट एवर इट इज। सो या, वी कैन टॉक अबाउट इट अ बिट। हाँ, मतलब डेफिनेटली माइंडसेट में शिफ्ट तो आया था, एंड वो ऐसा नहीं था कि एकदम से बाल हटाए तो माइंडसेट एकदम से चेंज हो गया।
एंड उस टाइम में मुझे पहले ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास अपने आप को कवर करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आपके बाल लंबे होते हैं तो जैसे मेरे थे, तो आपकी ना बहुत सारी चीजें कवर हो जाए उसके, आपको सब चीजें दिखेंगे, आपको ये फेस पे बाल हैं, मेरे फेस पे ये पिंपल यहाँ पे, ये मार्क अभी भी है, बट वो बालों की वजह से दिख नहीं रहा था, मेरी नेक पे ये है। बट जब मैंने अपने आप को फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैंने यही डिसाइड करा था कि ठीक है, मैं ऐसी ही हूँ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड बाल हैं वो आ जाएंगे, मतलब पता है वो इवेंचुअली आएंगे आएंगे। एंड उसके बाद मेरा काफी ये भी हो गया था कि मैंने अटैचमेंट वर्ड यूज करना ही छोड़ दिया था। लोगों को भी नहीं कहती कि मैं आपसे अटैच्ड हूँ, मैं उनको ये कहती कि मैं प्यार बहुत करती हूँ, बट मैं जो है वो मतलब एक्चुअल में बहुत Hmm. नेगेटिव है, एंड उसमें आप सेल्फिश हो True. जाते हो अटैचमेंट में। इसलिए अब So अगर true. आप प्यार देखोगे तो उसके अंदर फ्री काफी, एंड Hmm. आपके अंदर Hmm. Hmm. सेल्फलेस, उसमें आप बंदे को फर्स्ट रखोगे। Hmm. तो वो चीज थी, तो True. मेजर शिफ्ट तो यही था कि मेरा अटैचमेंट वाला कंसेप्ट काफी मतलब चेंज हो गया था, एंड मैंने उसके बाद काफी लाइफ में ये चीजों को, जैसे अगर कुछ होता था जिस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था, बिकॉज एज एन ओवर थिंकर आप Hmm. बहुत ज्यादा सोचो, आप हर पॉसिबिलिटी लगा लोगे ये चीज कैसे होगी, क्या होगा, पता नहीं है। तो तब ये चेंज मेरे अंदर Hmm. काफी मतलब कुछ महीनों के बाद आना शुरू हो गया था। बेसिकली सरेंडर आ जाता है. सो आई थिंक वही मैं प्रोसेस, आई थिंक इट हैपेंस लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिड दैट, तो ईगो शेड हो गई, राइट? लेयर शेड होनी शुरू कर हो जाएंगी. आई वोंट से कि वो एक दिन में हो गया होगा. आई थिंक लेयर राइट। शेड होनी शुरू हो गई होंगी. देन यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ थिंग्स विच आर क्लोजेस्ट टू यू, या फिर जो आपको बहुत ही ऐसा लगता है ना कि आई ओ देम, मतलब वही हम्म। व्हाट यू सेड, प्यार फ्रीडम है, राइट? दैट्स वो लेसन ना लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई ऑल्सो लर्न दैट वेरी लेट इन माई लाइफ. आई एम very happy that you learned that too early, but I learned that very late, because for me also love was all about ownership. But yeah, things happened with हम्म। me in 2020. Like you did, this experience happened with you. My I also had some experiences, and that made me realize that love is all about freedom, and you cannot owe people, and you cannot tell people to love you the same way you love them, right? You can selflessly love somebody and still, I mean, they won't give the love back, and that is okay. That is completely okay. You cannot, like, वही है ना, freedom आपको let go करना पड़ेगा. Anyway, so coming back to let go, and that's how your ego start shedding, and that's how you start learning surrender. कि मेरे कंट्रोल में शायद बहुत सारी चीजें नहीं है लाइफ में, and that's how I surrender to a bigger power, या जिस भी चीज में आप बिलीव करते हो. I think somehow that spiritual concept comes in picture, right? Like, I want to राइट। know your views about that. Yeah. राइट, मतलब स्पिरिचुअलिटी उसमें डेफिनेटली आती है, जैसे मैंने आपको बताया ये घी पड़ी थी कि तुम दुनिया में क्या लेके आए और क्या लेके शरीर भी कहीं नहीं लेके जाते, ये भी यही है जो मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये चीज Hmm. मैंने तब सीखी थी, एंड इनफैक्ट मैंने जब पूरा ये एक्सपीरियंस करा, तो ऑब्वियसली जब लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए थे, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि और को कभी नहीं बोलना, अगर किसी बंदे की से, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा उस पर हक है कि हम उसको बताएं कि उसने ठीक करा है या गलत हाँ. है। तो उस टाइम में मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि मुझे लोगों ने इतना कुछ बोला था, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी बोला था, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी, चूज करी है तो उसने कुछ सोच समझ के करी होगी, एंड एज कुछ गलत नहीं कर रहा या कर रही, तो मेरा मॉडल पोलीसिंग करूँ कि तुमने ये ठीक करा या नहीं करा, एंड वो ठीक किसके स्टैंडर्ड से है, हम तो उसको अपने स्टैंडर्ड से जज कर रहे हैं कि उसने ये चीज ठीक करी या नहीं करी। तो तब ये चीज हुई थी मेरे साथ, एंड स्पिरिचुअली मेन लेसन तो यही था कि मैंने कंट्रोल करना छोड़ दिया था, क्योंकि पहले मुझे लगता था मुझे इस चीज को भी कंट्रोल करना है, सब मेरे अंडर होना चाहिए, इसलिए, एंड अगर मैं छोड़ दूंगी तो पता नहीं क्या ऐसा हो जाएगा। तो उस टाइम में मेरे को बहुत मतलब डर वाली एक फीलिंग होती है, क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ देते हो तो आपके पास कुछ पकड़ने को रहा नहीं। Wow. जैसे लोग Hmm. अपना पास्ट एक्सपीरियंस पकड़ के रखते हैं या अपना ट्रॉमा उसको लेट गो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हील करोगे उसमें मेहनत लगती है, उसमें करेज लगता है। तो Hmm. जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो हेड ऑन को फेस करना, उसमें आपको स्ट्रेंथ चाहिए। Amazing. Yeah, totally loved your views. I like completely resonate with every word you said, and I can completely understand, because वही बोलो ना, you hold on to so many things ना कि आपको पता ही नहीं होता, और हम्म। eventually आप ही burdened हो रहे हो, तो nobody else is being burdened around you. जो लोग moral impact policing कर भी रहे हो, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. They don't know your journey. They don't know what you are going through. So anyways, you have to, like, you have to keep coming back to that letting go part. So now let's come to the second part, like slightly a bit, let's talk about more self love, and more like about your Instagram page specifically, like हम्म। what you want, what is your goal with your page now. And obviously your past journey has impacted that, like your page and your creativity and your creator journey as well. So let's talk about bit about that as well.
राइट, मैंने जब एक्चुअली ये पेज स्टार्ट करा था ना, मैंने लाइक ये पेज मैंने 11 तारीख को शुरू कर दिया। मेन रीजन ये था कि मुझे अपनी फोटोज डालनी है जब मेरे सर पे बाल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं अगर बाहर मतलब वर्ल्ड में एंटर करूंगी तो ऑब्वियसली लोगों को कमेंट जो भी आएंगे तो वो चीज मुझे फेस करनी है। तो मैंने अपने आप को ये था कि रणभूमि में खोती डाल दिया कि आपको तो ये चीज फेस कर, तब बेसिकली मैंने डॉक्यूमेंट अपनी जर्नी को करने के लिए स्टार्ट करा था पेज। एंड जैसे आपने बताया कि पहले भी था पेज, तो पहले तब कॉलेज टाइम में शुरू करा था, उस टाइम पे बहुत अलग टाइप की लाइफ तब चल रही थी। कोविड में इनफैक्ट सब कुछ घर में हो गया, तो जब आप अपने साथ हो और जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और सारी चीजें आ रही हैं, तो उसके साथ आपको रहना है और अब वो बाहर नहीं निकल रहे कहीं पे भी। तो मैंने तब सोचा था कि ये पेज मैं उसके लिए यूज करती हूँ कि मेरे दिमाग में जो भी आएगा मुझे बस उस पर डालना है, कोई उसको पढ़े या ना पढ़े रिलेटी नहीं है। डॉक्यूमेंट मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू करा, फिर लोगों ने मतलब कुछ लोग पहले से जानते थे, कुछ नए उसमें ऐड हुए, तो वो ऐड धीरे धीरे होते गए, तो लोगों ने उसके साथ रेजोनेट करना शुरू कर दिया। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि ऐसा खाली मेरे साथ नहीं, more or less हमें ही रहते हैं। True. कि लोगों के स्ट्रगल होंगे, इनसिक्योरिटीज लोगों की सेम होती हैं, लोगों को लाइफ में जो चीजें अचीव करनी है मोर और लेस सबकी मतलब क्वांटिटी अलग हो सकती है, बट होती वो है, सेम होती है। तब मेरे को रियलाइज होता है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा रखना है जो लोगों के लिए एक सेफ प्लेस हो सकती है, जहाँ पे मैं वो चीजें डालूं जो मैं गो थ्रू कर चुकी हूँ, जो मैंने लाइफ में बेसिकली अपने लिए क्रिएट करी हैं, अचीव करी हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो लाइफ में अकेले हैं। तो बेसिकली मेरा Hmm. पर्पस ये था स्टार्ट So करने का। basically, with that level of authenticity, that you attract your own tribe, right? मतलब क्योंकि राइट, now you are being authentic, now you are being like ये मैं हूँ, अब जो भी है इसके साथ है और जो नहीं है वो इसके साथ नहीं है, which is एग्जैक्टली। which is how you come into your superpower. I think that's how you come into your superpower. के this is all about me. अब there could be people who can resonate and वो आपकी tribe बन जाते हैं, and जो लोग नहीं होते वो आपको eventually unfollow या छोड़ देंगे, which is fine because anyways वो आज जाए या कल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता because they are not your tribe. राइट, So that's how I think you, I mean, वही हुआ होगा और वही हो भी रहा है. So coming back to now, like how was eventually how was like वही close लोग, like what happened with your mom later, how was her reaction later, like how you think कि उस उनकी आसपास की लाइफ में भी तो कुछ चेंजेस आए होंगे ना along with you. And what I think is when you grow, आपके आसपास के लोगों की भी एक डिफरेंट लेवल की ग्रोथ हो रही होती है, कॉन्शियसनेस लेवल पे, नॉट ऑब्वियसली फिजिकल फिनेंशियल प्रोफेशनल ग्रोथ सबकी चल रही होती है, बट एक कॉन्शियस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे उनकी भी ग्रोथ होती है. सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? मेरे को ऐसा लगता है कि आप मतलब लाइफ में जितना भी ग्रो कर जाओ, लोग ना आपको एक अभी भी एक उस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं जब वो आपसे मिले थे। ट्रू. ट्रू. ऐसा मुझे सो लगता ट्रू. है, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में ग्रो कर गए, बट आपको ये नहीं पता कि सेम पेस पे क्या वो आपके साथ ग्रो कर रहे हैं। तो दैट्स सो ट्रू. माइंडसेट इतना अलग होता है और हम इसी चीज की वजह से डिफरेंट जो भी होता है, एंड इट्स ऑल जस्ट की डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है या पर्सपेक्टिव तरीके से दुनिया देख रहा है, उसका अपना लेंस है, मेरा अपना लेंस है, तो वो चीज है। एंड कमिंग टू माय मॉम, अब ऑब्वियसली वो बहुत अटैच थी उनके साथ। एक्चुअली ये भी चीज थी कि उनके खुद के बाल ना उतने लंबे नहीं थे जितने मेरे हुए, एंड उनकी हेयर क्वालिटी बिल्कुल अलग है, मेरी हेयर अपने फादर के ऊपर है, तो मेरे बाल बहुत थिक एंड बहुत लंबे वैसे थे। तो अभी भी उनके लिए वो चीज मेरे को समझ आता है कि मुश्किल है एक्सेप्ट करना, क्योंकि उनके हिसाब से मतलब ये था कि बाल होने चाहिए। अब मैंने अगर इतनी इन्वेस्ट कर तो को हट नहीं सकता। तो अभी भी इनफैक्ट मतलब मेरी मॉम तो रोई भी काफी थी, मतलब 2-3 दिन लगातार उनको काफी इस चीज का बुरा लगा था, एंड इवेंचुअली मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, बट एक पॉइंट में मेरे को लगती थी लेटर ऑन कभी लाइफ में वो समझ सके हैं कि ऐसा क्यों करा, बट अभी वो बहुत इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखती थी, क्योंकि वो इमोशनली बहुत अटैच थी मेरे बालों से। एंड वो चीज मैंने मतलब उनकी समझी, उन्होंने भी काफी कुछ बोला था बिकॉज अब वो वर्किंग है, तो उनकी वर्क प्लेस पे भी लोग थे जो मुझे फॉलो करते थे, तो उन्होंने उनको और ज्यादा लाइक हर्ट कर दिया। जैसे उन्होंने जो चीजें बोली कि क्या आपकी बेटी मेंटली सेन है एंड कहीं उसको कैंसर तो नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने बोली, तो वो उनके लिए बहुत हर्टफुल था अपने इवेंचुअली। Hmm. But I'm very sure a different level of growth happens there. Sometimes that's not visible, and maybe राइट, it's not that. But I think वो acceptance भी धीरे धीरे growth होती है for them to accept their kids as they are. Because I was a rebel kid when I was a teenager. तो नहीं हम्म, कहूँगी, even in my early 20s and late 20s, I was a rebel kid. My parents were like completely, there were many things where we were like poles apart, and I had my opinions and I stick to हम्म, those opinions like throughout my late 20s and early 30s. I was sticking to those opinions, and eventually when I started seeing them cooperating me and loving me back for my own हम्म, choices and my own happiness, I think the मेरी life में कुछ भी growth हुई हो, the main factor that matters is they are like my pillars now, right? So हम्म, the point is कि
जब वो रेबल किड जब इवेंचुअली ग्रो करते हैं इन देयर लाइफ्स एंड they are happy doing their stuff, the amount of support they get from their parents or the people around. There were many people who were against my choices, but then now those people support me back. So I feel कि कहीं ना कहीं that growth is what matters even more than your personal growth. So I'm sure eventually you might see those already, या तो आप देख रहे होगे या फिर आप देखने लग जाओगे, but I have personally seen those changes in the people around me, so I know the kind of growth that happens with people around you. So I राइट। can vouch on that for sure. लाइक नहीं करते कि लोग मतलब हमारे अलावा भी लोगों का अपना ट्रॉमा, अपने बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वो अभी तक लेके चल रहे हैं। हाँ, हमें लगता है कि खाली हम ही ऐसे हैं exactly. जो अभी इस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, बट एवरीबडी Hmm. एज मतलब अगर वो चाहे हीलिंग उनकी पूरी हुई हो या ना हुई हो, वो उस एक उसमें है प्रोसेस में। हमें नहीं True. पता वो कहाँ That's पे so हैं, true. बट वो भी अपने लाइक डीमन से फाइट कर रहे हैं, उनके भी दिमाग में True. थॉट्स आते हैं अलग, तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। Yes, and this was the what you are saying is this was my turning point as well. That I started understanding that they had their own background. They are coming from their own choices. Plus, there are people who are telling them things that are not as per like जो उनको जो लोग बोल रहे हैं वो कुछ और मुझे बोल रहे हैं. There is a whole cycle of communication happening. So yeah, even my turning point was that I started understanding that they had their own healing journeys as well, हम्म। along with. So yeah, when you start understanding, then there comes a point when there is like वो balance होने लग जाती हैं चीजें, you start understanding more. But yeah, राइट। amazing. Like I am totally, I mean, I hope your journey gives a lot of different perspective to people, and I'm seeing that. Yeah, like I love your page, the kind of perspective you share, the kind of thoughts you थैंक share. यू। It's like genuinely inspiring and motivating for people around. I would request people to go follow her. Not ending the podcast, we still have few minutes to discuss few things, but yeah, as we are reaching towards the end, what you like, let's sum it up with your top 3 learnings of this experience first, and then what you want to tell to listeners. That obviously one of them is uh, they can do whatever they want to. Nobody is there to question their कि आप क्यों कर रहे राइट। हो और क्यों कर रहे हो. But yeah, that's one of the things. Yeah, let's start with your top 3 learnings in the whole process, not like just doing that, in the whole process, or your like last 1 year of growth जो भी रहा होगा और healing journey. हाँ, मतलब फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द मेन वैलिडेशन जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो किसी और से नहीं चाहिए, वो आपको खुद से चाहिए। Wow. जो एक एक्सेप्टेंस जब आपकी अंदर से आ जाती है और जब आप अंदर से काफी स्ट्रांग हो जाओगे, जब आपको अपनी ओन मतलब वर्थ पता चलती है, तो इट्स लाइक कि दुनिया में कोई भी एक्सटर्नल चीज आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। मतलब आपका अंदर से ऐसा अगर माइंडसेट शिफ्ट होता है कि मेरे को पता है मैं कैसी हूँ या कैसा हूँ और मैंने उस चीज को एक्सेप्ट करा है और जैसे हैं परफेक्ट है, उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे जब लगेगा तब करना चाहिए। एंड अगर मैं हर बंदे के हिसाब से अपने आप को चेंज करूंगी तो बेसिकली मैं अपनी सेल्फ को खुद ही खो दूंगी। True, तो true. पहली चीज ये है फर्स्ट कि अपनी वैलिडेशन आपको मतलब अपने आप को वैलिडेट करना चाहिए, वो राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कि लोग यार हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे आप कितनी लाइफ में, इफ देयर वुड बी समवन जो आपको आके बोलेगा कि आपने ये चीज गलत करी है, एंड आपकी एक यही लाइफ है, तो एक ही जिंदगी है, इसमें भी अगर आपने वो चीजें नहीं करी जो आपको लगता है कि आपको इस लाइफ में ट्राई करनी चाहिए या आपको अपनी बकेट लिस्ट मतलब फुल करना, उसमें टिक मारने हैं, तो आप कब करोगे वो इसी लाइफ में। तो लोग कहेंगे, हमेशा ही कहते हैं, एंड जैसे कि गाना भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, तो उनका काम है कहना, तो उनको कहने दो और तुम्हें जो करना है तुम वो करो। एंड एज लॉन्ग एज अपने आप को हर्ट नहीं कर रहे तो उस चीज में कोई बुराई नहीं है। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज बी काइंड टू पीपल। एंड नॉट एवरीबडी किसी की अगर हो भी तो आपके पास राइट नहीं कि आप उसको जाके कुछ बोलो। एंड इस पूरे प्रोसेस में मुझे भी realize हुआ कि ऐसे 10 साल के बच्चे भी हैं जिनकी काफी डिजीज की वजह से बाल चले गए और उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा फ्रॉम देयर फैमिली, फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। तो इट टेक्स नथिंग फ्रॉम यू टू बी काइंड टू पीपल। एंड कुछ बोलोगे तो वो बंदा हर्ट होगा और थोड़े टाइम के लिए आपने तो बोल दिया, बट उसके लिए तो वो हमेशा लाइफ में चीज रहेगी कि मुझे किसी ने ये बोला। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी दुनिया में हम और ज्यादा काइंड हो, एंड दिस वर्ल्ड रियली नीड्स मोर काइंडनेस। Exactly. And वही है ना, people don't realize they actually hurt inner childs. वो एक दूसरे के inner child को ही hurt राइट। करते रहते हैं. And the adults which are growing, उनके आधे से ज्यादा तो wounded inner childs ही हैं. So वही है, उन issues पे जब तुम genuinely heal करना शुरू करते हो तो तुम्हें realize होता है. When I started healing my inner child, I realized that I had so many issues. I was the person who was like मतलब मैं
तुम्हें लगता नहीं है, you become actually toxic for people around, but you don't know. Right. And that was not even my fault, because my inner child was hurt. I could have hurt, मैं लोगों को hurt कर रही होंगी, या मैं उनको भी कहीं ना कहीं bother कर रही होंगी. But yeah, that's a process. And what you said is really nice. Be kind to people. And social media की वजह से hate करना और cancel culture और ये बहुत सब ज्यादा बहुत इजी हो गया है। easy हो गया है, which is not the right thing. We should obviously, we have gotten platforms, तो उसको जितना हम positive use करेंगे उतना हमारा ही फायदा है. जितना ज्यादा negatively use करेंगे उतना, I mean, आसपास और अपना inner child hurt कर रहे हो, दूसरों का भी hurt कर रहे हो. So there is no point of doing that. So yeah, I would like really like thankful to you for sharing your thoughts, for sharing your journey. But yeah, last, may you want to say anything to people as a last message, final message from your end? या माय फाइनल मैसेज वुड बी कि अभी आप लाइफ में जिस भी स्टेज पे हो ना, मतलब कहीं पे भी हो, किसी के साथ हो, अकेले हो, जैसे भी हो, तो अपने आप से जरूर प्यार करो। मतलब इस लाइफ में एक आप ही हो जो स्टार्टिंग से आपके साथ है, अकेले हो किसी के साथ भी हो, तो अपने आप से तो यार थोड़ा बहुत प्यार तो करना शुरू कर देना चाहिए। एंड वैसे भी अब जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो अपने आप को डेट पे लेके जाओ, अपने लिए गिफ्ट खरीदो एंड बी काइंड टू पीपल। Yeah, that's so true. And I also say the same. The only person who will remain till the end with you is you. So make sure that you are prettier, stronger, and you're more a good version every day, each day. You can keep trying on that, a fitter version each day. So yeah, that should be, I think, each one of us goal. मैं सब कुछ link कर दूंगी. I'll do your Instagram handle, and I think you are on YouTube as well. So people can go follow you, and if they resonate, they can obviously talk to you, they can discuss things if they want to. So I hope and I wish you get so many podcasts, and you inspire so many people. So thank you so much, Samviti, for being here. I'm really very thankful, and I'm thankful and grateful for the listeners as well for listening to us. So stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. We will see you in another podcast. Bye. बाय। थैंक यू स्तुति।